Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn what is component in React. So component is nothing but it is reusable and independent piece of code. What does it mean? When we create a function in our code, so we create function once and call it many times as per need. So same component works like component we are creating component at once and call it or render it many times when we need it in our application. So I can give you one example, like we create a button component. So button component and design the button component using Tailwind CSS or etc. And when we create a button component once, then whenever that button uses, we just render that button. So this is our button component, which are not created in our React app. So firstly, we create our button component. So let's get started. We create one folder which name gives components and create our first component which name is button.jsx. So it is component and we know when we write a component, so it uses JSX. It means JavaScript extension syntax, where we can write uh, HTML inside JavaScript. It means we write uh, HTML inside logic. So just do RFC, which is gives export this function, and default is used for because this is one function which I want to export from this file button.jsx. And if there are multiple files, so there the ex the way of exporting functions is different, which is used named export. So let's get create our UI and h1. This is our button. This is our button. Okay, button component and create button within div. Create button within div and button tag use and give it any value like submit button or click me button. So click me button and style this button using CSS, inline CSS, and we only give height and width and border box. Height give 5 pixel and width gives 10 px and border 2 px solid black. And so here our first component is created in React. So just like function, when we create our function, then function when we create our function, then call it. So when we create our component, then we render it and app.jsx फाइल में हम सारे कंपोनेंट रेंडर करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना बटन कंपोनेंट रेंडर करेंगे जिससे कि हमारे यूआई में वो बटन कंपोनेंट दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने बटन कंपोनेंट में क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। इसी वजह से एक्सपोर्ट किया था इस फंक्शन को, इसी वजह से इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम उसको रेंडर कर रहे हैं। तो ऐप में रेंडर करेंगे तो ये क्या होगा कि ये जो रूट है उसके अंदर
ऐप रेंडर होगा और ऐप के अंदर क्या रेंडर हो रहा है, हमारा ये बटन और ये H1 रेंडर हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने सर्वर को टर्न ऑन करते हैं। उसके पहले रिएक्ट ऐप के फोल्डर में जाएंगे और अपने सर्वर को ऑन करेंगे और इस लोकल यूआरएल के थ्रू हम अपने यूआई को देख सकते हैं, जिसपे हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो कि अभी हमने बिल्ड किया है वो दिखेगा। तो ये रहा हमारा यूआई। हमने ऐप कंपोनेंट में लिखा था ऐप कंपोनेंट रेंडर, और उसके बाद हमने बटन कंपोनेंट को रेंडर किया है, जिसमें यहाँ पर लिखा है दिस इज आवर बटन कंपोनेंट एंड क्लिक मी। तो ये हमारा बटन की तरह दिख रहा है, क्लिक मी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा इस बटन को डिजाइन करेंगे। डिजाइन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम इसको विड्थ दे सकते हैं 50 px, नो 20 px, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हमारा यूआई अब कैसा दिखेगा, इट्स नॉट लुक गुड, गिव 50 px। ओके, ओके। तो हम रिमूव कर देंगे जितने भी पहले से CSS लिखी गई है उसको रिमूव कर देंगे, index.css रिमूव करेंगे। तो अब हमारा जो है वो बिल्कुल अलग दिखेगा, मतलब कि हमने कोई पहले से जो ऑटोमेटिक CSS लिखी गई है app.jsx के लिए और main.jsx के लिए, उसको हमने रिमूव कर दिया है। अब हमारा सिंपल सा ऐप में H1 टैग दिया था तो वो H1 टैग दिख रहा है आपको। फिर हमने बटन में लिखा था H1 टैग में दिस इज आवर बटन कंपोनेंट, और हमारा एक बटन आ गया है जिसमें हमने 15 px जो है हाइट दी है और 20 px समथिंग हमने विड्थ दी है, और बॉर्डर बॉक्स हमने किया है 2 px सॉलिड। तो ये हमारा बटन कंपोनेंट डिजाइन हो गया। इसी तरीके से हम इस कंपोनेंट को जहां पर भी अपने एप्लीकेशन में जरूरत पड़े तो वहां पर हम इस बटन कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बटन कंपोनेंट समझ में आ ही गया होगा कि ये एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है, और रिएक्ट जो है वो पूरा का पूरा कंपोनेंट से ही मिलकर बनता है। ठीक है, तो रिएक्ट पूरा कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक एटलासियन एटलासियन वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट ये वेबसाइट हमारा पूरा रिएक्ट के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो इस रिएक्ट के अंदर पूरी वेबसाइट बनी है। और रिएक्ट का मेन क्या यूज होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए हम लोग रिएक्ट को यूज करते हैं। इट मीन्स कि अगर कभी भी हम किसी भी किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करें तो पूरा पेज रीलोड ना हो। ठीक है, पूरा पेज रीलोड ना हो, इस पे हमने क्लिक किया, इस पे हमने क्लिक किया तो पूरा पेज हमारा रीलोड कहाँ हो रहा है, पीछे का बैकग्राउंड का पूरा पेज रीलोड नहीं हो रहा है। जिसको जिसको हमें चेंज करना हो डायनेमिकली वो बस चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम रह रहा है। तो ये क्या करता है ना, रिएक्ट हमारा, जैसे HTML हमारा जो है रियल डॉम को मेंटेन करता है और हमारा रिएक्ट वर्चुअल डॉम को मेंटेन करता है, उसमें चेंजेस करता है। तो जो अ, जो भी हमारा मान लेते हैं कि H1 टैग में अगर चेंजेस आ रहा है तो वो सिर्फ H1 टैग में करेगा, उसके लिए पूरा का पूरा डॉम री रेंडर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ये भी जो कि रिएक्ट में बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक ये बॉक्स है। ठीक है, एक ये बॉक्स है, तो ये दोनों सेम बॉक्स हैं लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। तो ये सेम बॉक्स बार बार यूज किए गए हैं, बार बार रेंडर कराए गए हैं, और इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मतलब इनको कस्टमाइज किया गया है। ये हमारा सेम बॉक्स है, तो इसमें जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन है, कस्टमाइज किया गया है सेम बॉक्स को।
तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। तो क्या एक ही तरीके के कंपोनेंट को हम अपने एप्लीकेशन में बार बार लिखेंगे? नहीं। कंपोनेंट हम लिखेंगे एक बार और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये एक पूरा बड़ा कंपोनेंट होगा जिसके अंदर ये हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को एडअप किए हैं। तो जो हमारा एक ये सारे स्मॉल कंपोनेंट है और इस स्मॉल कंपोनेंट को एक बिग कंपोनेंट के अंदर रखा गया होगा, रेंडर किया गया होगा। तो रिएक्ट पूरा जो है वो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। आगे हम प्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।